اور ونی چھنہ پتہ کتس کالس گژھِ بیٚیہِ یا گژھا نہ گژھا مگر سوچن چھ یہ کہ ونکس یس سرکار ازچ ہندوستان بناون یتھ مز کانگریس مکلوت ثنون شاید اس دژو ادے پورس مز نار یم سات تتہ آل انڈیا لیول اخ ورکشاپ لوگ یہ ونکس اس پروگرام چلان یت بت یمو ای ڈی تھو ای ڈی یا تمن نیشنل ات این ڈی اے یس مز شامل یہ کیا وجہ کامیاب کی آج اگر اس وچان 2014 پتہ کہین جماعت چھن محکمہ ونوسا ادارہ ونوسا بنانے آو کن مخصوص چیز اس انویسٹیگیٹو پروگرام رودمت میکسمم یس پوچھ تاچھ سو 10 یا 11 گھنٹن دیکھیے یہ تو صاف نظر آ رہا ہے کہ ایک انتقامی جذبے کے تحت یہ ساری کارروائی ہو رہی ہے اور یہ بھی جو لاجک جو لگ رہا ہے وہ یہ ہے کہ شاید ای ڈی ان سے وہ ایکسٹریکٹ نہیں کر سکی جو توقع وہ کرتے تھے سنیں گے ہم، یا وہ باتیں جو وہ سننا چاہتے ہیں وہ ابھی تک نہیں نکل رہا ہے، ورنہ ای ڈی کا جو اپنا ریکارڈ ہے میکسیمم ریکارڈ 10 اور 11 گھنٹے کا رہا ہے یہ جو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں۔ آج 58 گھنٹے، کل رات تک 58 گھنٹے ہوئے، 58 گھنٹے میں بھی اگر کوئی بات نہیں نکلی، یہ ٹائم کھینچ رہا ہے تو اس سے یہی ثابت ہو رہا ہے کہ وہ کچھ بھی ان سے جو سننا چاہتے ہیں وہ نہیں نکل رہا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، سوال یہ اٹھتا ہے کہ جیسے اس وقت خاص طور سے ایک مخصوص جماعت ہندوستان کو، ملک کو باقی ساری پارٹیوں سے ایک مکت کر کے صرف 1 پارٹی رول کا جو وہ چاہتے ہیں کرنا، جو ان کی منشا ہے، کیا یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ وہ ناکام ہو گئے خود وہ سب کرنے میں، اور اس چیز کو اب وہ ای ڈی، سی بی آئی، انکم ٹیکس، ان اداروں کو استعمال کر کے اس اپنا جو ان کی سوچ ہے اس کو بعمل لانا چاہتے ہیں۔ تو ابھی تک کا جو یہ رہا ہے، جو سلسلہ ای ڈی کا رہا ہے، وہ اس میں ناکام ہو چکے ہیں۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا پورے ملک میں نہ کہ صرف کانگریس پارٹی بلکہ تمام پارٹیز نے اس چیز کا برملا اعتراف کیا ہے کہ یہ ایک یہ جو ہے ایک ونڈکٹیو پالیٹکس کے تحت یہ کیا جا رہا ہے، اور یہ ونڈکٹیو پالیٹکس زیادہ دیر نہیں چل پائے۔ سر لیڈر، یہ تو آپ دیکھ رہے ہیں نا، 2014 سے جب بھی یہ آئے، ہر جگہ پہ ہر ریجنل پارٹی جتنے بھی، جس کو یہ کہیں کہ وہ اینٹی بی جے پی کہیں یا اس سوچ کے خلاف ہیں یا اس ایجنڈا کے خلاف ہیں، ریجنل لیول پہ بھی اور سینٹرل لیول پہ بھی ہر پارٹی نے اس چیز کا ایک مخالفت کی، جتنے بھی ان کے اینٹی پیپل یہ اقدامات ہوئے۔ چاہے آپ لے لیجئے، سب سے پہلے انہوں نے نوٹ بندی کا کیا، اس کے بعد میں انہوں نے جی ایس ٹی کا کیا، اس کے بعد میں انہوں نے یہ مسلمانوں کا جو ہے وہ ایک وہ این آئی اے وغیرہ جو یہ آسام وغیرہ کی سائڈ کیا، اس کا کیا، اس کے بعد انہوں نے کسانوں کا کیا، اب انہوں نے اگنی پتھ کا کیا۔ تو یہ جتنے بھی اینٹی پیپل قانون یا آرڈرز وہ نکالتے ہیں، پورے ملک میں اس کی جو ہے ایک مخالفت ہوتی ہے، لیکن ہر ایک اس کا جو ہے جو اس سوچ سے یہ نہیں رکھتا ہے، سہمت نہیں ہے، وہ اس کا ویرودھ کرتے ہیں۔ ریجنل لیول پہ چاہے بنگال ہو، چاہے اپنا اڑیسہ ہو، چاہے دلی ہو، کہیں پہ بھی ہو، لیکن جس وقت
कांग्रेस की आवाज़ उठती है, ये मुल्कगीर आवाज़ बन जाती है। और इस मुल्कगीर आवाज़ में की जो सबसे शिद्दत से जो इसकी तर्जुमानी करते हैं वो इस वक्त राहुल गांधी कर रहे हैं। तो उन लोगों का ये ख्याल है कि इस आवाज़ को दबा दिया जाए, और ये अगर आवाज़ दब जाएगी तो पूरे मुल्क में जो इस वक्त की बदअमनी है, शायद वो उस बदअमनी को कंट्रोल कर सकेंगे। अलबत्ता वो जिस तरीके से, जिस अंदाज से ये कर रहे हैं, उस अंदाज से वो लोगों को अपने खिलाफ ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं। कंसोलिडेशन हो रही है पूरे मुल्क में, लेकिन बीजेपी को इसका कोई फायदा नहीं। हम अपोज इस वास्ते नहीं कर रहे हैं। हर साल हर जगह, हर स्टेट में, सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे रिक्रूटमेंट होती है, वो पुलिस में होती है, पैरामिलिट्री फोर्सेस में होती है, आर्मी में होती है। लेकिन जो इन्होंने ये नया एक कानून निकाला, इन्होंने कहा कि ये अभी तक की जो आर्मी की जो रिक्रूटमेंट थी, है जो आर्मी थी, उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, ये कॉलोनियल आर्मी थी। आज उनको 1947 से आज 2022 में उनको पता लगता है कि ये कॉलोनियल स्टाइल का रिक्रूटमेंट था, या ये आर्मी कॉलोनियल आर्मी थी। उसका उन्होंने, जैसे आर्मी में जिस वक्त भर्ती होती थी सिपाही के तौर पे, उसकी सर्विस 15 साल की होती थी। 15 साल रिटायरमेंट के बाद में उसको बाज़ाब्ता पेंशन दिया जाता था, और वो अपनी ज़िंदगी गुजारता था, इज़्ज़तदार तरीके से गुजारता था, नया रोज़गार उसमें से करता था, उसको कंसोलिडेटेड भी मिलता था। अब इन्होंने ये क्या किया कि बजाय 15 साल के, उससे 15 साल से पहले उसकी बाज़ाब्ता 2 साल की, 3 साल की ट्रेनिंग होती थी, यानी 15 और 3 18 साल वो आर्मी में रहता था। अब इन्होंने क्या किया, 4 साल में 6 महीने ट्रेनिंग और 3.5 साल मुलाजमत, और 3.5 साल मुलाजमत करने के बाद में अगर उन्होंने 1000 आदमी सपोज रिक्रूट किया है, या 1 लाख रिक्रूट किया है, उसमें से 25,000 को, 25% को वो आगे चलाएंगे, 75% को वो छुट्टी कर देंगे, और उस 75% को वो शायद 11 लाख रुपए की मुलाजम ये कंसोलिडेटेड देंगे, और उसके बाद में उसका कोई पेंशन नहीं रहेगा। एक साइड से पूरा मुल्क जो है वो बेरोजगारी से जूझ रहा है, दूसरी साइड से वो जितने भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, जो एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग ये थे, इदारे थे, वो चाहे एयरपोर्ट था, चाहे वो रेलवे स्टेशन थे, चाहे वो बैंक्स थे, जितने भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, आधे वो अडानी को बेच चुके हैं, आधे वो अंबानी को बेच रहे हैं। तो यहाँ का मुल्क का नौजवान फिर कहाँ, फिर उसकी नज़र थी आखिर में आर्मी के ऊपर। अब आर्मी को भी आपने जो है वो इस तरीके से कर दिया कि 4 साल के बाद आपको निकाल दिया जाएगा। तो ये खुद से मुल्क में ऐसी एक अफरा तफरी फैला रहे हैं, ये समझ ही नहीं आ रहा है कि मुल्क को वो चला रहे हैं या मुल्क को वो तोड़ रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टीज तो हमेशा कभी भी किसी भी इलेक्शन, किसी भी लेवल के इलेक्शन के वास्ते तैयार रहती है। अलबत्ता वो जो इशारा दे गए हैं, हम तो ये कहते हैं कि आप कभी भी इलेक्शन कीजिए, लेकिन जो हमारा स्टेटहुड है, आपने हमें बजाय प्रमोट करने के डिमोट कर दिया है। यहाँ पे हरियाणा, पंजाब जैसी जो कल तक एक रियासत को तोड़ के अलग अलग रियासतें, वो हमारे एक ज़िले के बराबर हैं, 2 ज़िलों के बराबर हैं, और इतनी बड़ी रियासत ये अनडिवाइडेड इंडिया में ये सबसे बड़ी रियासत जम्मू कश्मीर हुआ करती थी महाराजे के टाइम पे। उसको पहले आपने डिवाइड किया और उसको डिग्रेड कर दिया और यूटी बना दिया। हमारी मांग ये है कि इलेक्शन से पहले आप हमारा स्टेटहुड वापस कीजिए और फिर इलेक्शन कीजिए। तमाम सियासी जमातें हर इलेक्शन के वास्ते हमेशा तैयार हैं। ये एक मौजूद बहस है कि इलेक्शन लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए। हर एक की बात, मैं यूटी की ही बात बताऊं आपको, जम्मू कश्मीर के हवाले से बताऊं। अगर नहीं लड़ते हैं तो उसके नुकसानात भी हैं, अगर लड़ते हैं तो उसके नुकसानात भी हैं। तो ये उस वक्त हमने ये देखना है कि ज़्यादा नुकसान लड़ने के हैं या ज़्यादा नुकसान न लड़ने के हैं। क्योंकि अगर हम लड़ते हैं तो शायद उनकी बात जो है वो एक हिसाब से वो जो है वो लोगों में चली जाती है कि हाँ हम लोगों ने तस्लीम कर लिया। लेकिन अगर नहीं लड़ते हैं, अभी पीछे आप देख लीजिए
जिस वक्त पंचायत के इलेक्शन थे, बीडीसी के इलेक्शन थे, बहुत सी पॉलिटिकल जमातों ने नहीं लड़ा। उसका नतीजा क्या निकला? उसका नतीजा ये निकला कि अनवांटेड लोगों को स्पेस मिल गई। अब मैं कैसे लोग आए हैं उसमें मैं उनकी किरदार कुशी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन वो पॉलिटिकल स्पेस कुछ ऐसे लोगों ने ऑक्यूपाई कर ली जो हमारे समाज के वास्ते गलत है, जो हमारी सियासत के वास्ते गलत है, जो जम्मू कश्मीर की सालमियत के वास्ते गलत है। तो हमें उसके बारे में बहुत बारीक बीनी से सोचना होगा और सीरियसली सोचना होगा, और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल लीडर्स को इसके बारे में सोचना होगा कि लड़ने के क्या फ़ायदे नुकसान हैं और न लड़ने के क्या फ़ायदे नुकसान। कांग्रेस ने अभी डिसाइड एक चीज़ जो है आपसी सलाह मशवरे से कर रही है। पहले हमारी लेवल पे सलाह मशवरा स्टेट की लेवल पे होगा, फिर मरकजी लेवल पे सलाह मशवरा होगा और उसके बाद होगी। इसमें ना हाँ है ना है। शुक्रिया सर। थैंक यू।